Hello students, in this video lecture I will explain to you how to prepare a flexible budget. Here I have one example, one illustration, and on the basis of this illustration I will explain to you how to prepare a flexible budget, and after that I will explain to you what is the concept of flexible budget. But before that I want to tell you few important things about variable cost and fixed cost. Let me tell you first few important features of variable cost. The first one is that variable cost per unit always remains constant, fixed, rigid, irrespective of changes made in the level of output. जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट होती है ना, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, फिक्स रहती है, जो बदलती नहीं, चाहे जितना भी चेंजेस हो प्रोडक्शन में, चाहे प्रोडक्शन कम हो या फिर बढ़े, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट. And at the same time, total variable cost changes with the changes made in output. It increases when output increases and vice versa. और जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती है, मतलब वेरिएबल कॉस्ट इन टोटलिटी, वो हमेशा बदलती है. वो बदलती है इन एग्जैक्ट इक्वल प्रोपोर्शन. अगर प्रोडक्शन बढ़ा तो वो भी बढ़ेगी, अगर प्रोडक्शन कम हुआ तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी कम होगी. Now let me prove to you these two conclusions on the basis of this example. यहाँ पे मैंने एक प्रोडक्ट X लिया है. Now for the manufacturing of product X, we need a raw material that is A. Now value of A per unit is ₹2. मतलब A जो raw material है जो चाहिए for the production of X, उसके एक यूनिट की कॉस्ट है ₹2. Now next is one quantity of A required for 1 unit of X. अगर X जो प्रोडक्ट है हमारा फिनिश प्रोडक्ट, अगर उसका हमें एक क्वांटिटी बनाना है तो हमें रॉ मटेरियल का भी एक क्वांटिटी लगता है. Now here production units, in this row you can see production units, in this row you can see raw material required. Here I have specified variable cost per unit, here total variable cost. Now अगर प्रोडक्शन हमें जीरो कर बना रखना है, इसका मतलब हमें प्रोडक्शन एक्स का नहीं करना है, तो रॉ मटेरियल कितना लगेगा? रॉ मटेरियल भी नहीं लगेगा. अगर प्रोडक्शन करना ही नहीं है तो रॉ मटेरियल क्यों लगेगा भाई? नाउ हियर if you want to manufacture, if in this company let's say the production target is 1 unit of X. Now in this case the raw material required of A for the production of 1 unit of X is 1 unit. मतलब अगर X का एक यूनिट बनाना है हमें, तो रॉ मटेरियल जो हमारा A है उसका भी एक यूनिट लगेगा. अगर आपको 100 यूनिट्स बनाने हैं X के, now in this case you will need 100 units of raw material. Now in the same way here you will need 200 units of raw material, here you will need 500 units of raw material. Now here tell me what is the value of A per unit, that is ₹2. It means यहाँ पे भी अगर जो वेरिएबल कॉस्ट होगी वो पर यूनिट 2 ही होगी. अगर यहाँ पे एक यूनिट भी परचेज किया रॉ मटेरियल ए का, तो उसका भी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 2 ही है. Here it will also remain constant, here 2, here also 2, here also 2. Now you see the total variable cost. Now when there is no production, the total variable cost will be 0, क्योंकि प्रोडक्शन ही नहीं हुआ तो मटेरियल की कॉस्ट हुई ही नहीं, मटेरियल पे खर्चा हुआ ही नहीं है क्योंकि प्रोडक्शन ही नहीं हुआ. लेकिन अगर यहाँ पे एक यूनिट का प्रोडक्शन हुआ है एक्स का, देन एक यूनिट तो लगा है रॉ मटेरियल का और उसका प्राइस है कितना? 2. नाउ इन दिस सिचुएशन आवर टोटल वेरिएबल कॉस्ट at this level of production will be ₹2. Now if you if you want to make a production of 100 units of X, then you will need 100 units of raw material, that is A. But the variable cost per unit of A, that is ₹2. Now it means for the production of 100 units of finished good X, the total variable cost of material will be ₹200. Actually जो material होता है variable cost ही होता है, तो 200. Now here the total variable cost will be 400, मतलब 400 रुपीज का मटेरियल लगेगा फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 200 यूनिट्स ऑफ X. अगर 500 यूनिट का प्रोडक्शन करना है X का, तो आपका जो वेरिएबल कॉस्ट होगा मटेरियल के बिकॉज ऑफ ऑन द अकाउंट ऑफ मटेरियल, इट विल बी ₹1000. नाउ you see here the variable cost per unit always remain constant. Is it changing here? No, it is not changing, it is remaining constant, though there is a change in the level of output. Now see, यहाँ पे 0 प्रोडक्शन है, यहाँ पे 1 यूनिट का प्रोडक्शन, यहाँ पे 100 यूनिट का प्रोडक्शन है. Now it is increasing, but still variable cost per unit has remained constant. Now here total variable cost changes with the changes made in output. It increases when output increases and vice versa. अब यहाँ पे देखो प्रोडक्शन आपका जैसे ही बढ़ा, आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ी है. यहाँ पे लिखा है देखो, इट इंक्रीजेस व्हेन आउटपुट इंक्रीजेस. जैसे आपका प्रोडक्शन 1 से 100 यूनिट हो गया ऑफ एक्स का, आपकी जो मटेरियल कॉस्ट है वेरिएबल कॉस्ट, दैट इज आल्सो इंक्रीज फ्रॉम 2 to 200. नाउ यू कैन सी हियर इंक्रीजिंग ट्रेंड. सी
हियर प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग ना, हियर वेरिएबल कॉस्ट इज इंक्रीजिंग। चलो मान लो कि आपने 500 का यूनिट का प्रोडक्शन किया है, अब आपको कम प्रोडक्शन करना है, 200 यूनिट का प्रोडक्शन करना है। तो देखो अगर जैसे आप 500 से 200 का प्रोडक्शन करते हो, मतलब जैसे आप प्रोडक्शन डिक्रीज करते हो, आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी डिक्रीज हो रही है। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो प्रूव्ड। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस एग्जाम्पल we can say that variable cost per unit always remains constant, fixed, rigid, irrespective of changes made in the level of output, and total variable cost changes with the changes made in output. It increases when output increases and vice versa. Let me give you a few more examples of variable cost. Wages देख लो, wages भी एक variable cost ही है, direct expenses देख लो वो भी variable cost है। in short जो अपना prime cost होता है ना, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलो या फिर वेरिएबल ओवरहेड्स बोलो, ये वेरिएबल कॉस्ट ही है। नाउ लेट मी आई हैव हियर टू मोर कंक्लूजन्स and these are of fixed cost. Let me read these conclusions first for you. Total fixed cost always remains constant, fixed, rigid, irrespective of changes made in the level of output. यहाँ पे देख लो आप, जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट होती है ना वो हमेशा कांस्टेंट होती है, और जो टोटल फिक्स कॉस्ट होती है ना वो हमेशा कांस्टेंट होती है। यहाँ पे देख लो जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट वो हमेशा चेंज होती है एज पर द लेवल इन आउटपुट, और फिक्स कॉस्ट पर यूनिट भी चेंज होती है। मतलब वेरिएबल कॉस्ट का अगर कंक्लूजन आपको मालूम है, हाँ, तो उसका एग्जैक्ट अपोजिट होगा फिक्स कॉस्ट का कंक्लूजन। फिक्स कॉस्ट के फीचर्स हमेशा ध्यान में रखना। लेट मी प्रूव टू यू हाउ इज इट पॉसिबल, means how total fixed cost always remains constant, that I want to prove you. Now fixed cost होती कौन सी है, जो कि फिक्स है, जो कि हमें वो इनकर होती है और उसको पेड भी करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल म्यूनिसिपल टैक्स को देख लो, अगर आपके कंपनी में प्रोडक्शन हुआ या नहीं हुआ, लेकिन जो भी म्यूनिसिपल टैक्स आपके कंपनी को देना है, म्यूनिसिपैलिटी को, वो देना ही पड़ेगा आपको, दो यू आर नॉट प्रोड्यूसिंग। चलो मान लो रेंट, अगर आपका फैक्ट्री रेंटेड प्लेस पे या फिर आपका वेयर हाउस रेंट पे आपने लिया है, अगर आपका प्रोडक्शन हो या ना हो, अगर आपने कुछ सेल किया हो या ना किया हो, लेकिन आपको रेंट तो देना पड़ेगा ही ना। तो व्हाट इज द नेचर ऑफ रेंट, इट इज फिक्स कॉस्ट। वो वेरिएबल कॉस्ट नहीं है, वो प्रोडक्शन पर डिपेंडेंट नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है। प्रोडक्शन आप करो या ना करो, फिक्स कॉस्ट तो इनकर होके ही रहेगी। सो एग्जाम्पल इज रेंट। नाउ लेट मी प्रूव टू यू हाउ टोटल फिक्स कॉस्ट ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। चलो ये आपका रेंट पर मंथ कितना है, 5000 रुपीज है। इस एग्जाम्पल के अंदर आपने प्रोडक्शन किया या नहीं किया एक पर्टिकुलर मंथ में, चलो जनवरी में आपने प्रोडक्शन किया या नहीं किया, तभी भी आपको 5000 का रेंट देना पड़ेगा। चलो आगे आगे महीने में फरवरी में, लेट्स से यू हैव प्रोड्यूस वन यूनिट ऑफ एक्स, तभी भी आपका रेंट कितना होगा, 5000 ही होगा। चलो उसके अगले महीने में आपने 100 यूनिट्स प्रोड्यूस किया, तभी भी अगले महीने का रेंट कितना होगा, 5000। इन अ सेम में whether you produce 200 units or 500 units or 1 lakh units or 0 units or infinite units, still the fixed cost, that is rent, it will remain constant. So total fixed cost is always going to remain constant. Now see, total fixed cost always remains constant, fixed, rigid, irrespective of changes made in the level of output. आप जीरो प्रोडक्शन करो या फिर बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करो, या फिर 100 कैपेसिटी से प्रोडक्शन करो, या फिर 50% कैपेसिटी से प्रोडक्शन करो, आपका फिक्स कॉस्ट जो रेंट है वो हमेशा फिक्स रहेगा इन टर्म्स ऑफ टोटलिटी। लेकिन फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का क्या हो रहा है देखेंगे अपन। देखो यहाँ पे देखो, फिक्स कॉस्ट changes with the changes made in output, it decreases. So fixed cost per unit decreases when output increases and fixed cost per unit increases when output decreases. कैसे हो सकता है, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना यूनिट का प्रोडक्शन हुआ है, एक यूनिट का, और कितना रेंट है, 5000 है। इसका मतलब क्या है, से दैट फिक्स कॉस्ट दैट इज रेंट पर यूनिट ऑफ एक्स इज ₹5000। अगर आप 5000 को एक से डिवाइड करोगे तो आपको फिक्स कॉस्ट तो पर यूनिट तो मिलेगा। यहाँ पे कितना है, वो 5000 है। यहाँ पे चलो मान लो कि आपने 100 यूनिट का प्रोडक्शन किया, तो आपका टोटल फिक्स कॉस्ट कितना है, 5000। अगर 5000 ये टोटल फिक्स कॉस्ट है, अगर इसको आप 100 से डिवाइड करोगे, देन यू विल गेट और फिक्स कॉस्ट पर यूनिट दैट इज ₹50। नाउ देखो, जैसे आपका प्रोडक्शन 1 से 100 हो गया, आपका फिक्स कॉस्ट पर यूनिट 5000 से 50 हो गया, कम हो गया ना फिक्स कॉस्ट पर यूनिट। आपका टोटल फिक्स कॉस्ट तो सेम है, लेकिन फिक्स कॉस्ट पर यूनिट तो कम हो गया। अभी यहाँ पे देखो, आपका प्रोडक्शन कितना है, 200 है, टोटल फिक्स कॉस्ट कितना है, 5000 है। लेकिन इफ यू डिवाइड दिस 5000 with the production units, that is 200,
योर फिक्स कॉस्ट पर यूनिट एट दिस लेवल ऑफ आउटपुट। कौन सा लेवल का आउटपुट है? 200 यूनिट्स का आउटपुट लेवल का आउटपुट है। और यहाँ पे कितना आ रहा है फिर फिक्स कॉस्ट पर यूनिट? 25 आ रहा है। यहाँ पे कितना आएगा? 10 आएगा, 10 आएगा। अभी यहाँ पे देख लो आप, यहाँ पे क्या लिखा है? फिक्स कॉस्ट पर यूनिट चेंजेस विद द चेंजेस मेड इन आउटपुट। चेंज हो रही है या नहीं हो रही है? फिक्स कॉस्ट पर यूनिट हो रही है चेंज। इट डिक्रीजेस व्हेन आउटपुट इंक्रीजेस। जैसे प्रोडक्शन आपका बढ़ रहा है, जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा है, आपकी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कम कम हो रही है, एंड वाइस वर्सा। चलो मान लो कि आप 500 के लेवल से प्रोडक्शन कर रहे हो, अभी यहाँ पे आपने 400 के लेवल से 400 का प्रोडक्शन किया, 400 यूनिट्स का प्रोडक्शन करने वाले हो, आपका 5000 टोटल फिक्स कॉस्ट है, मतलब वो तो बदलने वाला नहीं है। लेकिन आप जैसे आप प्रोडक्शन कम करोगे, देखते हैं फिक्स कॉस्ट पर यूनिट बढ़ती है या नहीं बढ़ती है। देखो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट है ना, बढ़ गई, कितनी हो गई? अब 12.5 हो गई। जैसे प्रोडक्शन कम होगा, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट बढ़ेगी। जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कम होगी। सो आई थिंक आपको शायद मैं ऐसा गेस अज्यूम कर लेता हूँ कि आपको ये पता चल, मतलब नाउ यू आर फैमिलियर विद दिस फीचर्स ऑफ वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट. Now let me explain to you how to prepare a flexible budget with the help of this problem. Now here we have illustration, and as per this illustration, let me read to you first this illustration. The statement given below gives the flexible budget at 60% capacity of Finolex Cable Limited Faizpur. चलो ये इस प्रॉब्लम के अंदर हमें बजट मिला है, कौन से लेवल का मिला है? 60% कैपेसिटी का बजट मिला है। यहाँ पे देख लो, हमें 60% कैपेसिटी का बजट मिला है और हमें बोला गया है कि प्रिपेयर अ टैबुलेटेड स्टेटमेंट गिविंग द बजट फिगर्स एट 75% एंड 90% कैपेसिटी। हमें बोला गया है कि आपको ऑन द बेसिस ऑफ दिस 60% यू हैव टू प्रिपेयर अ फ्लेक्सिबल बजट फॉर 75% लेवल एंड 90% लेवल। मतलब ये दो जो कैपेसिटी है, 75% कैपेसिटी, 90% कैपेसिटी, इसके लिए बजट बनाना है। नाउ यहाँ पे मेक योर ओन क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंसेस बिटवीन फिक्स्ड, वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस। यहाँ पे हमें बोला गया है कि जो भी डेटा है, कॉस्ट डेटा, उसका आप क्लासिफिकेशन करो किसके अकॉर्डिंग टू देयर बिहेवियर, और किस में करना है? फिक्स्ड एक्सपेंसेस, वेरिएबल एक्सपेंसेस एंड सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस। चलो पहले क्लासिफिकेशन कर लेंगे, फिर हम फ्लेक्सिबल बजट बनाएंगे। अभी देखो प्राइम कॉस्ट मटेरियल, अगर 60% कैपेसिटी को 1,60,000 का प्रोडक्शन लग रहा है, मटेरियल लग रहा है, जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे, कैपेसिटी बढ़ाओगे, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाओगे, आपको मटेरियल भी ज़्यादा लगेगा, और जैसे आप प्रोडक्शन कैपेसिटी कम करोगे, आपको मटेरियल भी कम लगेगा। इसका मतलब ये कॉस्ट कौन सा है? वेरिएबल कॉस्ट है। ऑलवेज कीप इन माइंड, जो प्राइम कॉस्ट होती है ना, वो ऑलवेज वेरिएबल कॉस्ट होती है। प्राइम कॉस्ट के जो कंपोनेंट होते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनका नेचर कैसा है? वेरिएबल है। ये वेरिएबल कॉस्ट है बेसिकली। अब डेप्रिसिएशन देख लो, मशीन के ऊपर चार्ज करते हैं अपन, असेट्स के ऊपर अपन डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, चाहे असेट यूज किया या न किया प्रोडक्शन के लिए, डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ द ईयर हम चार्ज करते ही है एज पर द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। खाली मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन को कंसिडर करेंगे और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन को कंसिडर करेंगे। उस टाइम पे ये नहीं कंसिडर करेंगे कि मशीन यूज हुई है या नहीं हुई है। डेप्रिसिएशन तो चार्ज होगा ही होगा, तो इसका मतलब ये कौन सी कॉस्ट है? फिक्स कॉस्ट है। तो उसके बाद प्रोडक्शन वेजेस, 60% कैपेसिटी पे जब काम करेंगे अपन, तो जो भी वर्कर है उसके लिए हमें 40,000 रुपीज देना पड़ेगा, 40,000। जैसे हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, जैसे कैपेसिटी बढ़ाएंगे, हमारे वेजेस भी बढ़ेंगे, और जैसे कैपेसिटी हम कम करेंगे, हमारे वेजेस भी कम होंगे। इसका मतलब वेजेस कौन सी कॉस्ट होती है? वेरिएबल कॉस्ट होती है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो प्राइम कॉस्ट है वो वेरिएबल कॉस्ट है, और प्राइम कॉस्ट के कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जो नेक्स्ट है रेंट, अभी मैंने आपको एग्जांपल में बताया कि रेंट फिक्स कॉस्ट होती है। उसके बाद कौन सी है? इनडायरेक्ट मटेरियल, ये भी वेरिएबल कॉस्ट है। उसके बाद है इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी। देखो आप प्रोडक्शन करो या नो करो, इंश्योरेंस तो निकालते हैं अपन, तो इंश्योरेंस का और प्रोडक्शन का कोई रिलेशन ही नहीं है, तो ये भी फिक्स कॉस्ट है। और जो इनडायरेक्ट लेबर है ये भी वेरिएबल कॉस्ट है। और जो इलेक्ट्रिक पावर है और रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, यहाँ पे क्या दिखाया है कि इलेक्ट्रिक पावर का 40% फिक्स पार्ट है, इसका मतलब रिमेनिंग 60% वेरिएबल है। जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस है इसका 60% फिक्स्ड है, इसका मतलब क्या होता है? इसका 40% जो रिमेनिंग है वो वेरिएबल है। इसका मतलब ये कौन सी कॉस्ट है? तो ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। इसे हम सेमी फिक्स कॉस्ट भी बुला सकते हैं। ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्यों है? क्यों ये बीच की है, मतलब क्या है? ये फिक्स भी है और वेरिएबल भी है। जिस कॉस्ट के अंदर दोनों प्रॉपर्टीज है, फिक्स्ड एंड वेरिएबल, उसे हमें कहना है सेमी वेरिएबल कॉस्ट और सेमी फिक्स कॉस्ट। ओके ना, अभी फ्लेक्सिबल बजट बनाना है हमें, तो यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन का फॉर्मेट ड्रॉ करके रखा है। यहाँ पे मैंने लिखा है इन द बुक्स ऑफ फिनोलेक्स केबल लिमिटेड फैजपुर फ्लेक्सिबल बजट नॉर्मल एक्टिविटी यूनिट्स। एक्चुअली इन दिस प्रॉब्लम
the figure is missing means how many units are produced at 60% capacity. That figure is missing. Otherwise I would have mentioned here the number of units produced at 60% capacity. वो यहाँ पे मेंशन किया ही नहीं है. So यहाँ पे खाली मैंने यूनिट्स लिखा है, नंबर ऑफ यूनिट स्पेसिफाई किए ही नहीं कि 60% को कितना प्रोडक्शन होता है होगा, कितना होगा वो दिखाया ही नहीं मैंने यहाँ पे, क्योंकि प्रॉब्लम में दिया ही नहीं है. उसके बाद यहाँ पे मैंने प्रोडक्शन दिखाया, यूनिट्स, ये तीनों को मैंने ब्लैंक रखा है क्योंकि मुझे मालूम है ये प्रॉब्लम में दिया ही नहीं है डेटा. नाउ कैपेसिटी 60%, 75, 90 बाई 75, 90 क्यों, क्योंकि इन दिस प्रॉब्लम वी आर टोल्ड टू प्रिपेयर अ बजट एट 75-90% कैपेसिटी. अभी अपन बजट कैसे कैसे बना सकते हैं फ्लेक्सिबल बजट. सी देर आर 3 लॉजिक्स behind the preparation of flexible budget. You can use the logic of classification of cost. क्या करो, जो भी कॉस्ट डेटा है ना उसका क्लासीफाई करो 3 कॉस्ट में, फिक्स्ड, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल, एंड उन तीनों को मिला के आपको बजटेड कॉस्ट आ जाएगी. या फिर आप कॉस्ट शीट का फॉर्मेट भी यूज कर सकते हो. कॉस्ट शीट का फॉर्मेट क्या है मालूम है आपको, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का एडिशन करो जिससे प्राइम कॉस्ट बनती है. उसके अंदर फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड करो, आपका वर्क कॉस्ट मिल जाएगा. उसके अंदर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स का ऐड करो, आपको ऑफिस कॉस्ट या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल जाएगा. फिर उसके अंदर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को ऐड करो, आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स मिल जाएगा या फिर टोटल कॉस्ट मिल जाएगा. और उसके अंदर प्रॉफिट ऐड करके आपको सेल्स का फिगर भी मिल जाएगा. तो इन शॉर्ट द फर्स्ट लॉजिक है क्लासीफाई द कॉस्ट, सेकेंड लॉजिक है कॉस्ट शीट, और एक लॉजिक है मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट. अगर आपको मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, मतलब सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट तो कंट्रीब्यूशन बचता है, और कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट माइनस करो तो प्रॉफिट बचता है. तो ये भी आप लॉजिक यूज कर सकते हो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फ्लेक्सिबल बजट. इन शॉर्ट 3 लॉजिक है. पहला लॉजिक क्या है, क्लासीफाई द एक्सपेंसेस इन फिक्स्ड, वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल. सेकेंड, यूज द फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट. Third, use the format of marginal cost statement. That is, from sales deduct variable cost, you will get the contribution, and from contribution deduct the fixed cost, you will get the profit. Okay, लेकिन इस प्रॉब्लम में यहाँ पे हमें बोला गया है कि क्लासीफाई करो. तो हम क्या करेंगे, सिंपली क्लासीफाई करेंगे एक्सपेंसेस को और एक बजट बना देंगे. तो यहाँ पे देख लो, सबसे पहले मैंने यहाँ पे फिक्स एक्सपेंसेस रखा है. और फिक्स एक्सपेंसेस में कौन सा फिक्स एक्सपेंसेस है, ये डेप्रिसिएशन है, उसके बाद ये रेंट है, उसके बाद इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी है. तो इसके फिगर्स अपन क्या कर लेंगे, 60 का कॉलम है, बिलो दैट कॉलम और बिलो इन द कॉलम ऑफ 60 I will show first the value of depreciation, rent and insurance of machinery. Value of depreciation is 60,000, so here 60,000. उसके बाद जो नेक्स्ट है that is rent and its value is 12,000, so here I will take 12,000 rupees. और इसके बाद वैल्यू है इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी का, वो भी 12,000 है. अभी मैंने अभी आपको कंक्लूजन बताए थे दो विथ रिस्पेक्ट टू फिक्स कॉस्ट. आई विल शो टू यू अगेन. अभी देख लो यहाँ पे, द टोटल फिक्स कॉस्ट ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, फिक्स्ड, रिजिड, इरेस्पेक्टिव ऑफ चेंजेस मेड इन द लेवल ऑफ आउटपुट. जो टोटल फिक्स कॉस्ट है वो बदलेगी नहीं, चाहे आप प्रोडक्शन बढ़ाओ, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाओ या फिर प्रोडक्शन कैपेसिटी कम करो, इट विल रिमेन कांस्टेंट. सो हियर ये कांस्टेंट ही रहेगी, इट विल नॉट चेंज एट 75% कैपेसिटी एंड 90% कैपेसिटी. देखो रेंट का तो चेंज होगा ही नहीं, डेप्रिसिएशन तो चेंज नहीं होने वाला, इंश्योरेंस भी चेंज नहीं होने वाला. नाउ द नेक्स्ट इज वेरिएबल कॉस्ट एक्सपेंस, वेरिएबल एक्सपेंसेस. द फर्स्ट इज प्राइम कॉस्ट मटेरियल. द वैल्यू ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड at 60% कैपेसिटी इज रुपीज 1,60,000. मतलब 60% से अगर प्रोडक्शन करना है, 60% कैपेसिटी से प्रोडक्शन करना है तो कितने का मटेरियल लगने वाला है, 1,60,000 का लगने वाला है. अगर आप प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाओगे बाय 15%, दैट इज फ्रॉम 60 to 75, नेचुरली आपको मटेरियल भी एक्स्ट्रा लगेगा. तो कितने का मटेरियल लगेगा, नाउ हियर सी एट 60% कैपेसिटी the value of material required, that is prime cost material, is rupees 1,60,000, right? So how much material will be required at 75% capacity? This is the question. Now you are supposed to make cross calculation. So here 75 into 1,60,000 divided by 60, so the answer is 2 lakh. So at 75% of capacity, if a company plans production at 75% capacity, it will need prime material, that is raw material, of rupees 2 lakh. देखो यहाँ पे फिर से देख लो, अगर 60% से प्रोडक्शन करना है तो 1,60,000 का मटेरियल लगेगा, 60,000 का मटेरियल लगेगा. लेकिन अगर 75 से प्रोडक्शन करना है देन यू विल नीड अ मटेरियल ऑफ रुपीज
2 lakh. This is the budgeted figure of the material. Now here let me tell you one more important thing. Now what is the change in the level of capacity? 15%, 60 to 75. Isn't it 15 percentage? Yes, it is 15 percentage. But at the same time, what is the change in the value from 160 to 2 lakh? That is 40,000. It means if a company make a change of 15% in the capacity, if a company make a change of 15% in the capacity, it will need additional prime cost material of rupees 40,000. अगर कंपनी ने उसका प्रोडक्शन अगर 15% से भी बढ़ाया, 15% से भी बढ़ाया, तो जो भी मटेरियल का वैल्यू है वो 40,000 से बढ़ने वाला है. बढ़ा या नहीं बढ़ा? देखो यहाँ पे 160 का है, यहाँ पे 2 लाख का है, बढ़ गया 40,000 से. यहाँ पे भी आप देख लो 75 से 90 पे प्रोडक्शन गया है, मतलब 15% से तो बढ़ा है प्रोडक्शन. इसका मतलब जो मटेरियल का कॉस्ट है वो भी 40,000 से बढ़ जाएगा. तो इसका मतलब क्या है कि एट 90% कैपेसिटी द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल विल बी रुपीज 2,40,000. अभी आपको मैं दिखाता हूँ. यहाँ पे देखो 60 को कितना है, 1,60,000 है. यहाँ पे 90 को कितना होगा, देखो यहाँ पे अभी मैंने 90 किया, एंटर करने के बाद क्या वैल्यू आ रहा है, 2,40,000. क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो भी अपना वेरिएबल कॉस्ट है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट चेंजेस विद द चेंजेस मेड इन आउटपुट, इट इंक्रीजेस व्हेन आउटपुट इंक्रीजेस. जैसे आपका आउटपुट बढ़ेगा 60 to 75% पे, जैसे आप आउटपुट बढ़ाओगे आपका वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा. दैट्स वाई प्राइम कॉस्ट मटेरियल का जो भी वैल्यू है वो बढ़ गया है. यहाँ पे उसका बजट बढ़ गया है. उसका बजट आप कितना हो गया, 2 लाख रुपीज हो गया. नाउ प्रोडक्शन वेजेस. The next is production wages. What is the value? 40,000. So at 60% capacity, the budgeted figure of wages is 40,000. चलो अब 60% को कितना है, यहाँ पे फिर से मैं 75 कर लेता हूँ. अभी देख लो यहाँ पे 60% को कितना है, बजटेड फिगर 40,000 है. तो 75 को कितना होगा, तो 50,000 होगा. इसका मतलब अगर कंपनी प्लान करती है 75% का प्रोडक्शन लेवल कैपेसिटी पे प्रोडक्शन करना, अगर प्लान करती है, अगर करना है उसे, तो उसे कितने के वेजेस लगेंगे, कितने वेजेस देने पड़ेंगे, 50,000 की बजटेड फिगर होगी. इतने तक की वेजेस कंपनी दे सकती है. दैट इज ऑन द बेस ऑफ बजट. यहाँ पे देख लो 15% के लिए कितना चेंज हो रहा है वैल्यू के अंदर, वेजेस के 10,000 का चेंज हो रहा है. अगर आप 75 से 90 तक प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो आपकी वैल्यू भी बढ़ेगी. तो फिर कितनी होगी, वो 60,000 होगी. देख लो यहाँ पे मैं फिर से क्रॉस चेक करके दिखाता हूँ आपको. 60 को 40,000 है तो 90 को कितना होगा, 60,000 ही होगा. देख लो इंटर करने के बाद कितना वैल्यू आ रहा है, 60,000 ही आ रहा है, क्योंकि ये वेरिएबल कॉस्ट है और टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमेशा वेरी होती है. नेक्स्ट है इनडायरेक्ट मटेरियल. कितना वैल्यू इसका, 48,000 है. सो हियर आई विल टेक 48,000 रुपीज. चलो अभी 60 को कितना, 48,000. 60% का अगर कैपेसिटी है तो इनडायरेक्ट मटेरियल का वैल्यू, बजटेड वैल्यू है 48,000. तो 75 को बजटेड वैल्यू कितना होगा, तो कितना है, 60,000 है. तो यहाँ पे 60,000 हमें लेना है. और यहाँ पे देख लो जैसे 15% का चेंज हो गया, जो इनडायरेक्ट मटेरियल की वैल्यू है उसमें भी चेंज हो गया. कितने से चेंज हो गया, 12,000 रुपीज से चेंज हुआ है. बजटेड फिगर में 12,000 रुपीज से चेंज हुआ है. जैसे आप प्रोडक्शन लेवल 75 से 90 करोगे, मतलब और 15% से बढ़ाओगे, आपकी ये जो कॉस्ट है इनडायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट, ये फिर से 12,000 से बढ़ेगी. सो इट विल बी 72,000 रुपीज. यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ. देख लो यहाँ पे 90% के लिए कितनी होगी, एंटर 72,000. नाउ द नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट लेबर. द वैल्यू इज 40,000. यहाँ पे मैं 40,000 ले लेता हूँ. अभी यहाँ पे मुझे फिर से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो प्रोडक्शन वेजेस 60% को भी 40,000 है और इनडायरेक्ट लेबर भी 60% को 40,000 है. अगर फिर से आप कैलकुलेशन करोगे तो इन्हीं फिगर को आना है. तो इट इज बेटर फॉर मी टू कॉपी एंड पेस्ट ऑल दिस फिगर्स हियर. चलो अभी वेरिएबल कॉस्ट का भी हो गया. अभी शायद आपको पता चला होगा कि वेरिएबल कॉस्ट की ट्रीटमेंट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट की ट्रीटमेंट बजट में कैसे दिखेगी. उसके बाद अब सेमी वेरिएबल एक्सपेंस है. अभी ये इंपॉर्टेंट है. सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस में क्या होता है कि अ सर्टेन पार्ट इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग पार्ट इज वेरिएबल. अभी यहाँ पे देखो सेमी वेरिएबल एक्सपेंस है पहला इलेक्ट्रिक पावर. ओके उसका वैल्यू कितना है, 8,000 है. तो यहाँ पे मैं 8,000 दिखा देता हूँ पहले. दैट इज रुपीज 8,000. अभी यहाँ पे देखो आप कितना परसेंट फिक्स्ड है, 40% है. इसका मतलब क्या है, जो 8,000 रुपीज है ना, इसका 40% फिक्स्ड है. तो 8,000 का 40% होता कितना है, 3,200 होता है. कितना होता है, 3,200. इट मीन्स आउट ऑफ 8,000 3,200 इज फिक्स्ड.
आउट ऑफ 8,000 3,200 इज फिक्स्ड. अगर 8,000 में से 3,200 फिक्स्ड है तो बाकी का बचा 4,800 इज वेरिएबल. 4,800 is variable. See, you do one thing. What is 40% of 8,000? 3,200. What is 60% of 8,000? 4,800. It means 3,200 is fixed and 4,800 is variable. अभी कौन ये जो डेटा है, that this data we have under 60% capacity. तो सबसे पहले I'll show that these figures अंडर 60% कैपेसिटी. सो 3,200 एंड 4,800. अभी अभी मैंने आपको बताया था जो फिक्स्ड होता है वो हमेशा फिक्स्ड रहता है, वो बदलेगा नहीं, चाहे जितना भी हो चेंजेस हो प्रोडक्शन आउटपुट में, वो बदलेगा नहीं. सो दैट कॉस्ट विल रिमेन कांस्टेंट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट. बट द वेरिएबल कॉस्ट चेंजेस नो. एट 60% कैपेसिटी इफ इट इज 4,800, so at 75% capacity it will be 6,000. क्योंकि ये बदलेगी 6,000. इसका मतलब क्या, जैसे प्रोडक्शन कैपेसिटी में 15% का चेंज होगा, ये जो कॉस्ट है ये बढ़ने वाली है. कितने रुपए से बढ़ने वाली है? 1,200 रुपए से बढ़ने वाली है, 1,200 से बढ़ने वाली है, 1,200. So when you will increase the production level from 75 to 90, that is by 15%, the cost will increase by rupees 1,200. So it will be here 7,200. देख लो यहाँ पे क्रॉस चेक कर लो. चलो 60 को इतना तो 90 को कितना, तो just a minute, कितना 7,200. now one more is there, repair and maintenance. कितना वैल्यू इसका? 20,000 रुपीज का वैल्यू है. तो यहाँ पे I will show you first, I will show that value first here, 20,000 in inner column. now see here कितना फिक्स्ड है इसका? 60% फिक्स्ड है. एक आपका कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं इसे यहाँ से निकाल देता हूँ. अगर लिखा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, सेम रखा तो भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं निकाल देता हूँ इसको ताकि कंफ्यूजन ना हो आपका. Okay, 20,000. Now what is the fixed part of 20,000? 60%. What is 60% of 20,000? That is 12,000. It means out of 20,000, 12,000 is fixed and remaining 8,000 is variable, which is 40% of 20,000. Calculate, you calculate what is 40% of 20,000. It is 8,000. Now what is the property of fixed cost? It remains constant, it doesn't change, so it will remain constant. 12,000 will remain constant because it is a fixed part. But at 60% capacity the variable part of repair and maintenance is 8,000, so it will increase, it will definitely increase because it is variable. Now at 60% capacity the variable cost is 8,000 rupees. Therefore at 75% capacity it will be 10,000. Now you can see here, for a change of 15% in the capacity the cost is increasing by 2,000. I mean to say the variable part of repair and maintenance is increasing by 2,000. So here it will be rupees 12,000. Now here look, at 90% it is 12,000. Now this problem, now after classifying all these expenses under the heading fixed, variable and semi-variable expenses, only one part is remaining. Now we have to here calculate the total cost, the total cost. So for that I will add all these figures. Now this is your flexible budget. This is the flexible budget. Now see, under 60% capacity, these are the budgeted figures for depreciation, from depreciation to repair and maintenance. All these are budgeted figure under a capacity of 60, and the total budgeted cost is 4 lakh. Here total budgeted cost at 75% capacity is 4,75,200. Under 90% capacity the budgeted cost is 5,38,400, and all these are the budgeted cost under 90% capacity for right from depreciation to repair and maintenance. Now here I want to ask you a few things. What is flexible budget? What do you think? I want to ask you a few questions. You just you give me the answer. Means you give me the answer whether but just by imagining that this is it is a face-to-face lecture. Now you tell me, does it a statement? Can I say that budget is a statement? I want to know your
point of view, and you can write your point of view in comment section. Does it a statement? Does it look like a statement? Oh, or in the flexible budget, can we have a budgeted cost? Can we have budgeted cost at different levels of capacity in flexible budget? I want to know the answer. You please write the answer in the comment section. Okay, this problem is over. Now I hope you understood what is flexible budget and how does it look like. Now in this problem, I have used the logic of classification of cost for the preparation of budget, flexible budget. In the next video lecture, I am going to use the logic of cost sheet, in the format of cost sheet for the preparation of flexible budget. Thank you.